الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه وعلماء ملته وأولياء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الأمين المكين الكريم. آئیے ہمارا سب سے پہلے آقا انعامدار شفیع روز شمار نائب پروردگار امت کے غمخوار بے یاروں کے یار بے مددگاروں کے مددگار امت کے والی غریبوں کے حامی شفیع المذنبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین سراج السالکین روتوں کو ہنسانے والے گرتوں کو اٹھانے والے یتیموں کے والی غریبوں کے حامی حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں والہانہ عاشقانہ غلامانہ عاجزانہ انداز میں جانب گنبد خضرا لو لگا کر یکجوئی یکجہتی یکسوئی کے ساتھ محبتانہ انداز میں مسکراتے دلوں کے ساتھ بھیگی بھیگی پلکوں سے پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک بار اور جی لگا کر نبی اور آل نبی پر درود اسم اعظم کا ورد کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیٹھ جائیں, بعد میں ٹائم ملے گا سننے. حاضرین ناظرین سامعین مصلیان کرام مقتدی حضرات, امام احمد رضا جامع مسجد و مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا کے وسیع و عریض سائے میں بیٹھے تمام تر حاضرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایڈوانس میں ہم آپ تمامی حضرات کو سرکار علیہ السلام کے ولادت پاک کی 1500 سالہ میلاد النبی کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں. سبھی حضرات دل کی اتھاہ کے گہرائیوں کے ساتھ تیاری بھی کریں اور میری مبارکبادیوں کو قبول بھی فرمائیں. سرکار علیہ السلام کے یوم ولادت برتھ ڈے 1500 سال پورے ہو رہے ہیں, اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جب سے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے تب سے لے کر اب تک صدقے بانٹ رہا ہے. روشنی کا صدقہ, اجالے کا صدقہ, شفا یابی کا صدقہ, نعمتوں کا صدقہ, اولاد کا صدقہ, ماں باپ کا صدقہ, آنکھوں میں روشنی, دماغ کو سوچنے کی طاقت, ہاتھ کو کرنے کی طاقت, پیر کو چلنے کی قوت, دل کو دھڑکنے کی طاقت, بغیر کسی ظاہری مشینی سسٹم کے اللہ تعالیٰ تمام سسٹم کو چلا رہا ہے. یہ سب صدقہ ہے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ. رب ذوالجلال خود صدقہ مصطفیٰ بانٹ رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو ہم خوشی میں صدقہ بانٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی دیا اور ہمارے لیے ہی صدقے کے دروازے کھول دیے.
तो हम उम्मत का फर्ज ये बनता है कि सरकार की विलादत के हर साल हम यूं ही गुजार देते हैं। इन साल 1500 साल पूरे हो रहे हैं, तो इस 1500 साल में अभी मिलादुन नबी आने को तकरीबन 1 महीना 1.5 महीने के करीब बाकी है। तो हम अभी से तैयारी शुरू कर दें, अपने अपने घरों में एक गुल्लक बना ले। माशाअल्लाह, ये 100 रुपये हमारे भाई शहबाज साहब हर जुमे की तरह बिलाल आगा ये इदारे की खिदमत के लिए पेश करते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मौला बरकत अता फरमाए। तो अभी से आप गुल्लक बना लें, जेब में अगर कपड़े में 2 जेब हैं तो एक एक्स्ट्रा जेब अलग से सिलवा लें, और 2 जेब में अपनी कमाई डालते रहें, और एक जो अलग सिलवाएंगे उसमें रसूलुल्लाह के मिलाद का सदका निकालते रहें। और जब मिलादुन नबी के दिन करीब आ जाएं तो आप तशरीफ़ ले आइए मदरसा गौसिया मुस्तफ़ा रज़ा और इमाम अहमद रज़ा जामा मस्जिद के दामन में। चूँकि इस साल हमारा इरादा है कि मिलादुन नबी कुछ हट के करें जो तारीख़ बन जाए, इतिहास बन जाए, और उसमें हमने इरादा किया है कुछ चैरिटी करने का, कुछ समाजी खिदमत करने का, और जुलूस भी जो निकलेगा वो अपना एक अलग रंग होगा। हर कोई अपने अपने रंग में नहीं आएगा, हर कोई उस रंग में लगेगा जो रंगे मुस्तफ़ा है, जो इश्क का रंग है, जो मदनी रंग है, जो मक्की रंग है। इंशाअल्लाह वही इश्क रसूल के रंग में सब बाहर निकलेंगे। सरों पर अमामा, बदन पे जुब्बा, आंखों में सुरमा, और फिर उस पे खुशबू लगी हो। जिस गली से गुजरे पता तो चले कि मुस्तफ़ा के दीवाने जा रहे। गुजरे जिस राह से वो सय्यदे वाला होकर, रह गई सारी ज़मीं अंबर सारा होकर। और क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। और मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शान तो ये रही कि सरकार अलैहिस्सलाम जहाँ जाते किसी से पता पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, खुशबू बता देती मुस्तफ़ा का वजूद कहाँ पे। एक शायर ने आशिकाना अंदाज में बड़ा अच्छा और उम्दा शेर कहा है, ये खुशबू से ढूंढ लेते सहाबा रसूल को, खुशबू से ढूंढ लेते सहाबा रसूल को। सरकार का कयाम कहाँ किसके घर में है, सरकार का कयाम कहाँ किसके घर में है। तो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां हमने अपना दीनी फरीजा समझकर करना है। सभी हजरात दिल के कान से सुने। अच्छा, इसमें हमारा आपका सबका जाती मफाद ये है कि अल्लाह के रसूल राजी होंगे तो अल्लाह राजी होगा, और जिससे रब राजी हो जाए उससे सब राजी हो जाए, और जिसका रब हो जाए उसका सब हो जाए। ये फार्मूला मुतअय्यन है, मुकर्रर है। तो पहला पैगाम ये माशाअल्लाह हमारे चाचा सिकंदर साहब बिला कबाब वाले, उन्होंने ये 100 रुपए भेजे हैं, लेकिन ये किस मसरफ में डालना है उसका उन्होंने इजहार नहीं फरमाया। 100 रुपए हमारे भाई मुबारक साहब जूस वाले ने भी पेश किया, अल्लाह कबूल फरमाए। तो ये है मिलादुन नबी का पैगाम जो मैंने आपको दिया। अब आप ज़हन दिमाग में हमारी बात बसाकर जाएं और रात भर सोचिए, हो सके तो कल दिन भी सोचिए और आने वाली रात भी सोचिए, यहाँ तक कि मिलादुन नबी की रात यानी पीर का दिन आ जाए, और फिर अपनी सोच पर महर लगा करके तैयारी शुरू कर दें, और अपने अपने अंदाज में गलियां सजाएं, घरों को सजाएं, नए कपड़े बनवाएं, क्योंकि ईद में नए कपड़े बनते हैं। ये ईदों की ईद ईद मिलादुन नबी है, तमाम ईदों की ईद है। अगर ये ईद ना होती तो कसम रब्बे दुल जलाल की, ना ईद फित्र होती, ना ईद कुर्बानी होती। ये ईद मिलादुन नबी का सदका है कि अल्लाह ने ये 2 ईदें अता फरमाई। नबी पाक के मिलादुन नबी का सदका है, सरकार की विलादत का सदका है। ये आज हमारी आंखों में जो रोशनी है, चेहरे पर जो नूर है, ये सब मुस्तफा अलैहिस्सलाम के मिलाद का सुरूर है, और अल्लाह का फजल है। हम मसरूर भी हैं, और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाने पर, सरकार जो हमें मिल गए हैं, इस पर हमें गुरूर भी है।
क्योंकि हमने जो महबूब पाया है वो महबूब लाजवाब है। फूलों में जैसे यकता यगाना गुलाब है, नबियों में वैसे मेरे नबी लाजवाब, नबियों में वैसे मेरे नबी लाजवाब हैं। दुनिया के तमाम तर रोशनियों के लिए किसी न किसी कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी शमा को रोशन करने के लिए आग की या उसके जरिए कोई ईंधन की जरूरत पड़ती है। हमारे मुस्तफा वो नूर है, वो रोशनी है जहां धुएं और आग का कोई नामो निशान नहीं है, मगर रोशनी ऐसी है कि अगर अंधेरे में मुस्कुरा दे तो उजाला हो जाए। आयशा को मिल गई सुई अंधेरी रात में आमिना के लाल का जब मुस्कुराना हो गया। मेरे मुस्तफा मुस्कुरा दे तो अंधेरे में उजाला हो जाए। तो पहला पैगाम मिलादुन नबी का। दूसरा पैगाम, सरकार के मिलाद का सदका अल्लाह ने ऐसा मुकर्रर किया है कि सुबह क़यामत तक वो सदका बढ़ता रहेगा। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती हैं कलिमा नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती हैं कलिमा नूर का। और या रसूल अल्लाह बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और फरमाया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, शम्अ दिल मिशकात तनसीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मेरे अजीजों, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका रब ने मुकर्रर किया चाँद की शक्ल में, सूरज की शक्ल में, और हमें और आपको बाप जैसी माँ जैसी नेमत अता रखी। फिर ऊपर से अल्लाह ने बीवी जैसी नेमत अता की, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत अता की, अक्ल शुऊर दिया, सोचने के लिए अल्लाह ताला ने दिमाग दिया, और लोगों में मुमताज रखने के लिए अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, फिर तजुर्बे का इल्म अता किया, फिर अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती अता की, बीमारियों से शिफा जैसी नेमत अता की, और परवरदिगार ने हमें खैर सोचने वाला दिमाग अता किया। मेरे दोस्तों, ये सदका अल्लाह ताला की तरफ से मिलादुन नबी के मौके पर अता किया, सरकार की विलादत पाक का सदका है। हम और आप अगर किसी अच्छे आलिम के पास जाएं और आप कहें हजरत मेरे बेटे की यौम विलादत है, उसका जन्मदिन है, हम क्या करें, तो आलिम साहब आपको ये नहीं मशवरा देंगे जाओ केक काटो, दोस्तों को बुलाओ, पार्टी करो, बल्कि ये कहेंगे कुरान खानी करवा लो, सदका कर दो। फिर आलिम साहब को बुला के दुआ करना अल्लाह ताला तुम्हारे बेटे की उम्र में बरकत अता करे। क्योंकि जो ये बर्थडे और जन्मदिन मनाए जाते हैं, ये इसमें माशाअल्लाह भाई सद्दाम हुसैन साहब अल्लाह ताला सलामत रखे, 50 रुपए इन्होंने बतौर नजराना मुझे पेश किया, 100 रुपए मस्जिद के लिए और 200 रुपए इन्होंने मदरसे के लिए सदका पेश किया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाइए, रसूलुल्लाह के मिलाद का सदका है, अल्लाह ताला इन्हें बढ़ चढ़ कर अता फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। इन भाई ने 500 रुपए का सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के मौके पर अता कर दिया, और ये 100 रुपए इन्होंने बतौर नजराना पेश किया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मौला ताला बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। तो ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अल्लाह बांट रहा है, तो हम तो बंदे हैं, और बंदगी ये है कि जो रब की सिफत है वो हमारे अंदर भी आए। अल्लाह रहीम है, बंदा भी रहीम हो, ये नहीं कि अल्लाह रहम करने वाला है, बंदा जालिम बन जाए। अल्लाह ताला अपने बंदों की तरक्कियों को देखकर उसकी रहमतें खुश होती हैं, बलाएं लेती हैं, हम जग भुनकर कबाब बन जाते हैं। कई लोग तो दूसरों की तरक्की को देखकर टोने टोटके करने लगते हैं, कभी उस मुल्ले के पास, कभी उस बाबा के पास, कभी उस तांत्रिक के पास, और यहाँ तक हद से गुजर जाते हैं कि अपने ईमान का सौदा कर डालते और उन काफिरों के चक्कर में आकर मूर्तियां बना बना के उनमें सुइयां गाड़ गाड़ के दफन कर देते हैं।
ताकि वो बंदा बीमार पड़ जाए और तेरा कुछ भला होना नहीं है। हाँ, मगर उस शख्स का नुकसान होगा लेकिन तेरा कुछ भला नहीं होना। मेरे अजीजों, अल्लाह रहीम है, तुम भी रहम वाले बन जाओ। अल्लाह करीम है, तुम भी करम वाले बन जाओ। अल्लाह सखी है, तुम भी सखावत करने वाले बन जाओ। कौन नहीं जानता कि बंदाए मोमिन अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका खाता है। लिहाजा हम रसूलुल्लाह के मिलाद का सदका खाने वाले लोग हैं। हमारे दिमागों में खुराफातें भरी जाती, जितने बाजियां भरी जाती हैं, ताकि आप दीन से दूर हो जाएं। वो जो जिसने आपको दीन से दूर किया उसका तो कोई नुकसान ये हुआ कि उसने दीन से दूरी की, वो खुद भी गुनाहगार हुआ और आपको भी रोक दिया। आप सदक़े से रुक गए, खैरात से रुक गए, नेकियों से रुक गए, इसमें आपका बड़ा खसारा है। मेरे अजीजों, मिलादुन नबी के मौके पर अल्लाह ताला सदका बांट रहा है। अब आपके सामने जो मैं कहने लगा हूँ, मिलादुन नबी के मौके पर हमें भी भरपूर सदका करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इदारा हाजा मदरसा गौसिया मुस्तफा रजा और इमाम अहमद रजा जामा मस्जिद, जहाँ से इश्क़ रसूल की रोशनी फूटती है, हर हफ्ता मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके इश्क का पैगाम दिया जाता है। हर हफ्ते जुमे के खुतबे में आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तरफ बुलाया जाता है। आपको नमाज की दावत दी जाती है, कुरान की तिलावत की फजीलत बताई जाती है, जिक्र अज़कार की फजीलतें बताई जाती हैं, फितना और फसाद से दूर रहने को कहा जाता है। चुगलखोरियां इंसान के रिज़्क़ को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, इनसे बचने के लिए ताकीद की जाती है। ये इश्क का वो मरकज़ है जो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी के तालीमात के महबर व मरकज़ पर कायम रहकर आपको पैगाम देता है। दोस्तों, इस इदारे की ज़रूरियात जब मैं आपके सामने रखता हूँ, आप बढ़ चढ़कर पूरी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मिलादुन नबी का सदका मांगने लगा हूँ आपसे। ऐ दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआएं की और इतनी दुआएं की कि सरकार के पैर मुबारक में वर्म पड़ गए, छाले पड़ गए और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह, हमारे भाई राजू साहब, अल्लाह ताला महफूज रखे रिज़्क़ में और इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। ये 500 रुपये पेश किए इन्होंने, 200 रुपये हमें बतौर नजराना पेश किया है और 300 रुपये मदरसे के लिए सदका दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मौला ताला खूब बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। मेरे अजीजों, प्यारे नबी सरवरे कौनो मकाम जनाब मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर सजदे में होते और कब सजदे में होते और मेरे आका के आंखों से आंसू बेतहाशा बरसते। क्या कभी तुम्हारे और हमारी आंखों में भी आंसू आए हैं कि सरकार की याद आ गई हो, हरे गुंबद की याद आई हो, दिल तड़पने लगा हो, ए मौला ये जिंदगी फानी है, न जाने कब चली जाएगी, परवरदिगार मरने से पहले रसूलुल्लाह का रोज़ा दिखा दे, ए अल्लाह रसूलुल्लाह का शहर दिखा दे। क्योंकि बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्के के लिए बरकत की दुआ की थी, मेरे मुस्तफ़ा ने मदीने के लिए बरकत की दुआ की थी। ए दोस्तों, वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वही घर बनाने को जी चाहता है। उस शहर के लिए कभी आपकी आंखें रोई हैं, कभी तड़प कर देखा है, कभी इश्क में आंसू बहा कर देखें। अल्लाह अकबर, आपके दिलों को करार आ जाएगा, आपकी नेमतों में अल्लाह उस फतेह अता फरमाएगा। है दोस्तों, मक्कतुल मुकर्रमा जहाँ मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए और मदीनतुल मुनव्वरा जहाँ सरकार आराम फरमा है, ऐ दोस्तों उस शहर मोहब्बत के लिए आंसू बहा कर देखिए। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना उम्मत को याद करते। शायर कहता है, रात भर गम में रोते रहे मुस्तफ़ा, हल्के में सुभान अल्लाह कहते, मिलाद का चर्चा हो रहा है, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। रात भर गम में रोते रहे मुस्तफा, अपनी उम्मत का जिस दम ख्याल आ गया, अपनी उम्मत का जिस दम ख्याल आ गया। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मौका करीब आ रहा है। 1500 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर मिलादुन नबी का सदका यह है कि हमने इदारे में पीने के पानी के लिए जो कनेक्शन लगा है उससे हटकर आरओ सिस्टम का इंतजाम करवाया है, जो इंस्टॉल हो चुका है।
جس کا خرچہ 5000 روپیہ آیا. ہم نے نمازیوں سے اعلان کیا, الحمدللہ ہمارے تمام نمازی حضرات نے, نمازی بھائیوں نے 2300 روپے سے مدد کر دی, لیکن اس میں تقریباً 5000 روپے میں سے 2300 روپے نکال دیں تو 2700 روپے کی کمی رہتی ہے. وہ 2700 روپے وہ پانی کا جو صدقہ ہے, یہ صدقہ جاریہ, اور ایسا صدقہ جسے میرے مصطفیٰ خود بھی پسند فرماتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہیں, بارگاہ مصطفیٰ میں آئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قد ماتت امی, سرکار میری امی جان انتقال کر گئی, ایو صدقہ افضل لہا, سرکار کون سا صدقہ ان کے لیے کریں جو سب سے بہتر ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا تصدقوا لہا بالمائی, ان کے لیے پانی کا صدقہ کرو, احفر لہا بکرا, ان کے نام سے کنواں کھود دو, لوگ اس کا پانی پیتے رہیں گے, اللہ تمہاری ماں کو ثواب عطا کرتا رہے گا. مدینے میں آج بھی بیر ابی سعد بن ابی وقاص ام سعد کا وہ کنواں آج بھی موجود ہے, اور لوگ اس کا پانی پی رہے ہیں, جب تک پیتے رہیں گے اللہ اس کا ثواب ان کی ماں کو عطا کرتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. تو یہ 2700 روپے کی رقم ہم نے ادا کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ لینا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کون آگے بڑھ کر اللہ کی رحمتوں اور اس صدقے کا حقدار بنتا ہے. اپنی والدہ, اپنی ماں, اپنے بھائی, اپنے بہن, اپنے والد اور خود کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ ماشاءاللہ ہمارے ان بھائی نے اپنی طرف سے یہ 50 روپے اس میں پیش کیے ہیں, اللہ قبول فرمائے. 100 روپے یہ بھائی مبارک صاحب, 100 روپے ان بھائی نے, یہ 250 روپے ہو گئے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. 500 روپے راجو بھائی, 100 روپے ان بھائی نے, 50 روپے انہوں نے, ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے اور مولا برکت عطا فرمائے. 50 روپے انہوں نے بھی پیش کیا, اللہ قبول فرمائے. سبحان اللہ, نہ لجائیے نہ شرم آئیے, بڑی تیزی کے ساتھ دوڑے دوڑے ہم تک چلے آئیے. سبحان اللہ. ہمارے بھائی معراج صاحب مہدی والے, انہوں نے بھی 500 روپے دے دیے, اللہ قبول فرمائے. رانوے گنتی کیجئے کتنے ہو گئے. سبحان اللہ, مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ. دوستو ہم محبت والے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا صدقہ کھانے والے لوگ ہیں. ہم صدقے پر جیتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہیں, اور نبی کا صدقہ ہم نہ کھائے تو کون کھائے گا. ہم حقدار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عطا ہے. میرے عزیزوں, تو یہ پانی کا صدقہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مولا برکتوں. 1600 ماشاءاللہ. تو یہ 1600 روپے آ گئے, 1100 روپے کی کمی ہے. اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ, پورے 1100. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, صدقہ میلاد النبی. ماشاءاللہ ہمارے بھائی شکیل احمد صاحب ابن حبیب احمد نبر اللہ مرقدہ, والدیہ, ان کے بابا اور ان کی امی کی قبر کو اللہ منور کرے. والدہ بطولن بھی اللہ تعالیٰ, انہوں نے یہ 1100 روپے جو باقی رہ گئے انہوں نے کہا ہم پورے کریں. سبحان اللہ. تو 1600 اور 1100 یہ 2700 روپے پورے ہو گئے. اب آئیے آگے بڑھتے, محبت سے ایک بار درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محروما سے نبض میں ضیا سے ملی, محروما سے نبض میں ضیا سے ملی, روشنی ہم کو نور خدا سے ملی, اور قادری سلسلہ ہے مقدر میرا, قادری قادری سلسلہ ہے مقدر میرا, مجھ کو نسبت یہ احمد
रज़ा से। अब दूसरी बात जो मैं अर्ज करने लगा, जैसा कि आपको इल्म है कि यहाँ मदरसे के जो तलबा हैं उनके खाने पीने का इंतजाम इदारे के अंदर ही किया जाता है और उनके लिए तलबाए किराम के खाने पीने का जो नज़्म नस्क होता है, जाहिर सी बात है अब हर वक्त मसाला पीसने के लिए जो मशीन होती है, वो मशीन जो पहले से थी वो खराब हो गई। बनाने में 1300-1400 रुपए का खर्च है, जबकि 1400-1500 रुपए की नई मशीन आ जाती है। लिहाजा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौके पर मैं दरख्वास्त करूंगा, कोई भाई अपनी तरफ से एक मशीन खरीद के लाके दे दे मदरसे के तलबा के लिए। इंशाअल्लाह ये तलबा के लिए इस्तेमाल होता रहेगा और अल्लाह ताला उसकी बरकतें आपको अता करता रहेगा। आप अपने नाम से चाहे तो अपनी तरफ से लगवा दे या अपने, माशाअल्लाह क्या नाम है आपका? परवेज भाई, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फसलके आला हजरत, माशाअल्लाह। तो इन्होंने अपनी तरफ से एहतमाम कर दिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मौला ताला बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। मेरे अज़ीज़ों, अब आइए मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तअल्लुक़ से मैं एक बड़ी बाबरकत बात बताने लगा हूँ। मोहब्बत से प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आमद के तअल्लुक़ से बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का वक्त करीब आ रहा है और पैगाम देकर जा चुके हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, याती नबिय्यन बादी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम का प्यारा नाम आसमान में अहमद है और जमीन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। बाप आदम अलैहिस्सलाम भी बिशारत दे गए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी बिशारत दे गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी बिशारत दे गए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी बता गए, हजरत इसहाक ने भी पैगाम दे दिया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी पैगाम दे दिया, हजरत जनाबे यहूदा ने भी पैगाम दे दिया, हजरत बनियामीन ने भी पैगाम दे दिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी पैगाम पेश कर दिया, खुशखबरी बता दी। इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी पैगाम दे दिया, हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने पैगाम पेश किया, हजरत जुल्किफ्ल ने पैगाम दिया, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पैगाम पेश किया, हजरत यूशा जुन्नून ने पैगाम पेश किया, हजरत जनाबे शुएब अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी पैगाम दे दिया और सबके बाद में, तमाम नबियों के बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बता गए मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं जो पथरीली जमीन पर पैदा होंगे, जहां ऊंट ज्यादा होते हैं, जहां खजूरों की खेती होती है, उस जमीन में आने वाले हैं। उनका नैन ऐसा होगा, उनकी आंखें ऐसी होंगी, जुल्फें ऐसी होंगी, कान ऐसे होंगे, आंखें ऐसी होंगी, जुबान ऐसे होंगे, लबहाए पाक ऐसे होंगे, रुखसारे पाक ऐसे होंगे। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आमद और आपके सिफात अगली किताबों में तमाम तर जिक्र कर दिए गए। हमने पूछा कुरान तू बता, तुम मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के जुल्फों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कुरान ने मचल कर जवाब दिया, वल्लैली इज़ा सजा। मुस्तफा की जुल्फें ये है कि जब ये लहराते तो काली घटाएं छा जाए। मुस्तफा अलैहिस्सलाम के चेहरे पाक के बारे में कुरान से पूछा गया, ए अल्लाह की सच्ची सुच्ची मुकद्दस किताब तू बता क्या कहती है? कुरान ने पुकार कर कह दिया, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता के बारे में क्या ख्याल है? कुरान ने कहा, इन्ना अअतैनाकल कौसर। महबूब की अता का हाल ये है, अल्लाह ने उन्हें खैर कसीर अता किया है और फरमाया, कुरान ने जिक्र कर दिया, मा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू अन। रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ। कुरान ने जब जिक्र किया मुस्तफा को, तो कुरान मुस्तफा अलैहिस्सलाम की गुफ्तार के बारे में जिक्र करते हुए कहता है कुरान, मा यंतिकु अनिल हवा। रफ्तार की जब बात आई,
मकाम मुस्तफ़ा की और सफर मुस्तफ़ा की बात आई तो कुरान ने पुकार कर कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल-अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। कुरान पाक ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के मकाम की बुलंदियों का जिक्र करते हुए कहा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। मुस्तफ़ा करीम का ये मकाम है। मेरे मुस्तफ़ा के हाथ के बारे में जब जिक्र हुआ तो फरमाया यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के बारे में जब जिक्र हुआ तो कुरान कहने लगा नूरुन अला नूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सिफ़ात मुस्तफ़ा कुरान ने बयान करके बता दिया। ऐ दुनिया वालों, मुस्तफ़ा करीम को पहचानना हो तो इन जिल्लत जिल्ली वालों के चक्कर में ना पड़ना, इनसे अपने मुस्तफ़ा की तारीफ ना सुनना। जब जब मुस्तफ़ा की याद आए कुरान खोल कर बैठ जाना। कुरान तुम्हें मुस्तफ़ा का नूर बताएगा, मुस्तफ़ा का रुतबा बताएगा, मुस्तफ़ा करीम की अज़मतें भी बताएगा। इसलिए ऐ लोगों, नबी पाक के नाम पर कुर्बान होना हो तो किसी और के चक्कर में ना पड़ो, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के दहलीज के चक्कर काटो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नाम से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे मुस्तफा के हुस्न का जवाब मेरे अजीजों, माशाअल्लाह हमारे भाई मोहम्मद हाशिम साहब ने तर्जुमे की तरह ये 500 रुपए ये मदरसे के लिए पेश किया। उन्होंने अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उनका दिया कबूल फरमाए और आप सबको भी, हम सबको भी हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, तो ये इदारा आपको इश्क रसूल का पैगाम देता है और याद रखिए कभी भी बदगुमानी का शिकार ना हो। अगर कभी आपका दोस्त हो और उस दोस्त से बदगुमानी होने लगे तो कुरान का पैगाम सुने। सुनना चाहते हैं? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने कुरान पाक के दूसरे पारे में इरशाद फरमाया ला तंसउल फज़ल बैनकुम। अल्लाह करीम ने फरमाया तुम आपस के एहसान को ना भुलाया करो। और ये कहां बयान किया अल्लाह ने? कुरान पाक में जहां तलाक का जिक्र है। मियां बीवी जब आपस में तलाक लेने लगे तो अल्लाह ने कहा मियां बीवियों सुन लो, आपस में जो तुमने एक दूसरे पर एहसान किया हुआ है ना, तलाक ले रहे हो मगर इस एहसान को ना भूलना ताकि तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की अच्छाई बाकी रहे, बदगुमानी पैदा ना हो, ताल्लुकात बिगड़ जाए मगर जुबान से उसकी बुराई कुछ कम ही करो। अपने यार से कुछ दोस्ती दायरे में ही करना, सारे पर्दे खोल के रख दिए, कल को दुश्मन हुआ तो तुम्हारी वाट लगाए पड़ा। और दुश्मन से ऐसी दुश्मनी कर ली कि कल को बात बन गई, मामलात सारे सेटल हो गए तो अब नजरें मिलाने में शर्म आ रही। बदगुमानियों का शिकार ना हो। इस्लाम में बदगुमानी को कभी जगह नहीं दी गई है। अच्छा, अगर आप किसी को डायरेक्टली जान रहे हैं, आपका दोस्त है, आपका अजीज है और वो आपको कोई तीसरा आदमी उसके बारे में बता रहे फलाना तो तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे गुमान रखता है और हम उसी पर बदगुमानी के शिकार हो जाते हैं। अरे आप उसे जानते हैं, आपका यार है, आपका अजीज है, सारे मसले खत्म करें एक साथ बैठ करके, जैसे चाय पे बैठकर गपशप के लगाते थे वैसे ही बैठ जाओ, दिल की बातें कह लो, मेरे दिल में ये है फलाने ने तुम्हारे बारे में ऐसा पैगाम दिया जिसकी वजह से मेरा दिल खट्टा हो गया, क्या कहते हो इस बारे में? तो तुम्हारा अजीज है, गैरों से चुना आपने और आप बदगुमानी के शिकार हो गए। मेरे अजीजों, या ऐसा ना किया करें, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। आपका दोस्त है, आप खुद ही बात कर लें। कभी आपने सुना है उलमाए किराम, उलमाए हक आपको बताएंगे, जब कोई आदमी आप कहता है ना हजरत मेरे लिए दुआ करना, हम तो आपके हक में दुआ करेंगे, इससे मना नहीं है, लेकिन हमारा मशवरा यह है कि खुद अपने रब से मांगा करो, क्योंकि तुम्हारे मांगने में जो दर्द होगा, तुम्हारे मांगने में जो तड़प होगी,
جو تم اپنے لیے اپنے درد سے مانگو گے وہ ہم نہیں مانگ سکتے. ہمیں کیا معلوم تمہاری تکلیف کتنی بڑی ہے, تم نے جملوں میں بتایا ہم نے سن لیا, لیکن تم خود اپنی تکلیف اپنے رب سے بتاؤ گے نا, باب اجابت سے ٹکرائے گی. اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. میلاد النبی کا تحفہ لے کر جاؤ, اپنے رب سے اوروں سے دعا کروانے کے بجائے اپنے رب کی بارگاہ میں خود دعا کیا کرو, اپنے رب کو منایا کرو. کبھی تمہاری دعائیں نہ سنی جائیں تو اس کا مطلب ہے تمہارے کوئی گناہ ہے جو تمہارے معاف نہیں کیے گئے. اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو, استغفار پڑھو, دعا کرو, پھر نہ قبول ہو پھر استغفار کرو. توبہ سچی جب تک کہ قبول نہیں ہوگی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. لہذا اپنی توبہ پر دھیان دیجئے, اپنے رب کو منائیے, انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا. بیمار ہیں شفا پا جائیں گے, کمزور ہیں طاقتور ہو جائیں گے. غریبی ہے امیری آئے گی, امیری ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں سخاوت عطا کر دے گا, اللہ تعالیٰ نرم دل عطا کرے گا. غرور و تکبر کو جگہ نہ دے, کیونکہ غرور و تکبر صرف اللہ کی صفت ہے, بندوں کو حق نہیں حاصل کہ وہ غرور و تکبر کرے. میرے عزیزوں, آپ صاحب علم ہیں اسے بانٹیے, آپ صاحب ثروت ہیں صدقہ کیجیے, اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کیجیے. کوئی پوچھے کیسے ہو, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. کبھی یہ نہ کہو کہ بڑا برا حال ہے, یہ پھٹا جا رہا ہے, وہ لٹا جا رہا ہے, ایسے کٹے جا رہے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. شکوے ہزاروں لوگ کرتے ہیں, یہ تو لوگوں کی عادت ہے. تم شکر گزار بن جاؤ. اللہ پاک فرماتا ہے میرا بندہ جب تک میرا شکریہ ادا کرتا ہے میں اس کی نعمتیں بڑھا دیتا ہوں. نعمت آنے کا جو دروازہ ہے وہ شکر ہے. ناشکری کر کے نعمت کے دروازے کو بند نہ کرنا. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شکر سکھاتا ہے. سرکار کی آمد ہوئی, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے احسان کیا ہمارے. میرے عزیزوں, انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. پڑھیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبھی حضرات سے درخواست ہے